کے بعد شام غریبہ سے پہلے تو مولا حسین کے سینے پر سوتی تھی. مولا حسین کی شہادت کے بعد اس بچی کا بستر خاک بن گیا. عزادارو جہاں کھڑے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے اس خاک پر بیٹھ جاؤ. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. شہزادی کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر, شہزادی کی مظلومیت کو ذہن میں رکھ کر, بی بی کی عظمت پر, بی بی سکینہ کی عظمت پر آواز بلند صلوات. برائے خوشنودی مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ, مولا حسین علیہ السلام, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ جو بیبیاں کھڑی ہیں میرے جو پیچھے نوجوان کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سے پیچھے ہو جائیں. یہ جو خواتین اس وقت بی بی کی کنیزیں کھڑی ہیں, یہ مائیں بہنیں کھڑی ہیں, ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. قربان جاؤں شہزادی زینب کی مظلومیت کے کہ کبھی کھڑی ہوتی کبھی گرتی تو شمر درے مار کر میری شہزادی کو جگاتا. تصور کرنا کہ آپ شہزادی کے روزے پر قصہ دے رہے ہو, اسی ذکر کے صدقے, جزاک اللہ اپنے گریہ کے صدقے بی بی آپ کو شام ملائے. تصور کرنا کہ شام کی تاریکی میں جہاں شہزادی کی تنہائی کا پرسہ دینے جاتے ہو نا, وہاں آج بھی کسی بچی کی, اماں بیٹھ جائیے, کسی بچی کی آج بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں کہ بابا آج بھی میں بہت پیاسی ہوں, بابا آج بھی میرے کانوں سے خون رستا ہے. تصور کرنا رات کا اندھیرا, آپ اکیلے شہزادی کے روزے پر بیٹھے ہو اور صدایں آ رہی ہیں کہ جاگو اے بالی سکینہ, دیتے ہیں آواز بابا, جاگو جزاک اللہ, دیتے ہیں آواز بابا. ایک شب سکینہ شام کے زندہ میں سو بابا کو دیکھا خواب میں, کہتے تھے وہ یہی بہت رو چکی میری جان, جاگ جا چل سکینہ چلے کربلا, ساتھ بابا کے رہنا, چل صبر چلے کربلا, ساتھ بابا کے رہنا سدا. ہائے ہائے سکینہ مجھ سے بچھڑی تو سوئی نہیں میری جان, ایک ایک سانس تم پر تھی کوہ گراں, اور اس پر ستم قید کی ساختیاں, تیری آہو بکا پر بھی پابندیاں, اس لیے کر رہا ہوں بکا. چل سکینہ چلے کربلا, ساتھ بابا کے رہنا سدا. اور مولا فرماتے ہیں یا سکینہ ہے یہاں صرف تنہائی تاریکیاں, یہ گھٹن اور تقدیر کی بیڑیاں, پر چاہنے والے تیرے تو سب ہے وہاں, چین آتا ہے اپنوں کی ہی درمیان, چھوڑ کر اب یہ شہر جفا, چل سکینہ چلے کربلا, ساتھ بابا کے رہنا سدا. اور جب تک زندان میں شہزادی رہی کبھی کہتی تھی اماں مجھے بابا کا سر لا دو, کبھی کہتی اماں ہو سکے تو علی اصغر کا جھولا لا دو, اماں ہو سکے تو علی اصغر کا کرتا لا دو. مولا کہتے ہیں چل سکینہ چلے کربلا, ساتھ بابا کے رہنا سدا, کہ یاد کرتا ہے اصغر
अरे तुझको आवाज देता है वो बेज़बां, अरे वो वहाँ रह गया आ गई तू यहाँ, वो वहाँ ना हो तू यहाँ ना हो, चैन दोनों को आ जाएगा। चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा। हाय हाय सकीना। जज़ाकल्लाह। तुम्हारे गिरिया के सदके बीवी तुम्हें अपने राज़े पर बुलाए, इंशाअल्लाह इसी साल बुलाए और हर साल बुलाए। अज़ादारे मेरा दिल कहता है कि जब मौला कह रहे होंगे ना चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा, अरे मातम करके सुनना। मेरा दिल कहता है मेरी शहजादी कहती होगी बाबा उस करबला जाकर क्या करूंगी, जहाँ मेरा भरा घर लुट गया, बाबा जहाँ मैंने चादरें छिनते हुए देखी है, बाबा मैंने जहाँ छुरियां तलवारें चलती हुई देखी है, जहाँ मैंने लाशें चलते हुए देखे हैं, जहाँ मैंने भैया को कुर्बान होते देखा है, आपको शहीद होते देखा है, अम्मू को शहीद होते देखा है, तो मेरा दिल कहता है मौला कहते होंगे ना सकीना ना, अब ना तलवार और नेज़ा है ना तीर है, करबला अब तो गाजी की जागीर, करबला अब तो गाजी की जागीर है, तेरे बाबा के ख्वाबों की ताबीर है, एक आगोश है जिसमें बेशीर है, अरे दिल ये तेरा बहल जाएगा। चल सकीना चले जज़ाकल्लाह, साथ बाबा के रहना सदा। अरे शाम से मुख्तलिफ है वहाँ की फजा, कौन तुझ पर वहाँ करेगा जफा। ज़रा दुआ करना है साधुओं के सदके, इलासों के सदके की बीबी शाम के हालात ठीक हो जाए कि आज भी खुलकर अज़ादारी नहीं हो पाई इस साल। मैं कहूँगा शहजादी बेशक हमारी हिफाजत के लिए वहाँ पाबंदियाँ थी, मगर शहजादी आज भी कहीं वो वक्त ना आ जाए जब तू रोती थी और तुझे तमाचे लगते थे, जब तुझे रोने वाले आते थे तो उन पर भी जुल्म होता था। ये भी जुल्म है शहजादी पर कि आज भी करबला में करोड़ों का मजमा पहुँचता है। मौला कहते हैं शाम से मुख्तलिफ है वहाँ की फजा, अरे कौन तुझ पर वहाँ आप करेगा जफा। बात सुनना मौला क्या कहते हैं, कौन तुझ पर वहाँ करेगा जफा, तेरा अकबर भी है और तेरे चचा सारे पहरों से आजाद है कमा, अरे अब तो पानी भी मिल जाएगा। चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा। सब मिलकर बोला जैसे बीबी के रोज़े पर खड़े हो, बीबी के रोज़े पर इस तरह बैठे हो, इस तसव्वुर को शहजादी हकीकत में तब्दील कर दे। तसव्वुर में बीबी का रोज़ा रखना और शाम की ज़मीन रखना और बुलंद आवाज़ से बोलो चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा। और इंशाअल्लाह शाम से मौला तुम्हें जब करबला लेकर जाए तो बीबी के वो बहन याद रखना, जब बीबी उम्मे रबाब गले कब्र से लिपट कर कहती थी सकीना हम तेरे बाबा से मिलने करबला जा रहे हैं, बाबा के लिए कोई पैगाम हो तो बीबी दे देना। सब बोले चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा, साथ अपने तुझे लेके जाऊंगा मैं, तेरे अम्मू से तुझको मिलाऊंगा मैं। अज़ादारो आप जो मिसरे पढ़ रहा हूँ ये मिसरे जहन में रखकर आंखें बंद करके वो मंजर जहन में लाना कि मौला हुसैन ने देखा कि जिन कानों में मौला हुसैन ने सकीना को बालियाँ पहनाई थी उन कानों में अब बालियाँ नहीं है, उन कानों में अब खून भरा हुआ है। अरे जो सकीना हुसैन के सीने पर
सोती थी अब वो खाक पर सो रही है। ये दोनों मंजर ज़हन में रखना और मौला के बैन सुनना कि साथ अपने तुझे लेके जाऊंगा मैं, तेरे अम्मू से तुझको मिलाऊंगा मैं, हाँ तुझे बालियां भी पिन्हा, हाँ तुझे बालियां भी पिन्हाऊंगा मैं, अपने सीने पे तुझको सुला, अरे साथ बाबा के गमज़दा चल सकीना चले करबला, साथ बाबा के रहना सदा, हाय हाय सकीना। शहादत के 3 बैंड जो मैं हर दफा पढ़ता हूँ, मौला हुसैन का सर तश्त में रखा था, यजीद तख्त पर बैठा था और कहता था ए बिन्ते हुसैन, मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बीबी कहती है तुझे क्या पता मेरा बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। रोज सुबह की नमाज के बाद मेरे बाबा मुझे अपने पहलू में अपनी गोद में बिठाकर ताज़े खुरमे खिलाते थे। यजीद लाती कहता है कि अच्छा बीबी ए बिन्ते हुसैन, तुझे अगर इस वक्त ताज़े खुरमे मिल जाए तो क्यों तू खा लेगी? बीबी कहती है खा लूंगी। यजीद ने क्या काम किया? यजीद ने एक तश्त मंगाया, उस पर एक रुमाल ढका हुआ था, कहा बीबी तेरे लिए ताज़े खुरमे आए हैं। अज़ादारों जब रुमाल हटाया गया तो सकीना ने देखा उसके बाबा का कटा हुआ सर कष्ट। अरे अज़ादारों ये जुल्म खत्म नहीं हुआ। मेरी शहजादी से यजीद कहता है बिन्ते हुसैन, अगर तुझे तेरे बाबा से और तेरे बाबा को तुझसे इतनी मोहब्बत थी तो अपने बाबा के सर से कह के उठ के तेरी गोद में आ जाए। अज़ादारों ये सुनना था, सकीना ने अपने दामन को फैला कर कहा बाबा, आज सकीना की मोहब्बत का सवाल है बाबा। अज़ादारों बाएजाज़े इमामत में खुदा सर इमाम हुसैन का उठकर बीबी की गोद में आ गया। अज़ादारों सर पीट कर सीधा पीट कर गिरिया कर कर सुनना, इस मसाइब का हक अदा करना। बीबी तुम्हें अपने रोज़े पर बुलाए इंशाअल्लाह इन आंसुओं के सदके। जब बीबी को अपने बाबा का सर मिल गया तो अपने बाबा के सर को बीबी ने पहले हसरत से देखा और फिर कहती रही बाबा, सकीना कितनी गरीब हो गई बाबा। अचानक बीबी के कानों से खून टपका, मौला हुसैन के रुखसार पर गिरा। सर हुसैन की आंखें खुली, पूछा सकीना ये खून कैसा? बाबा आपको क्या बताऊं, आपके बाद क्या जुल्म हुए। बाबा जो तोहफे में मुझे आपने बालियां दी थी ना, बाबा जो मुझे तोहफे में आपने बालियां पहनाई थी ना, बाबा शाम गरीबा में आपका कातिल शिमर वो बालियां छीन कर बाबा जितनी आराम से आपने बालियां पहनाई थी बाबा, बाबा इतनी आराम से उसने बालियां उतारी नहीं बाबा, जिसके हाथ में बालियां है वो नोचल। दूसरा बहन शहजादी करती है बाबा, करबला से लेकर शाम तक आपका कातिल बाबा ये रुखसार देख रहे हैं, इस पे मेरे नील के निशान देख रहे हैं। बाबा करबला से लेकर शाम तक सकीना इतनी गरीब हो गई थी कि आपका कातिल शिमर मेरे रुखसारों पर करबला से लेकर शाम तक तमाचे मारता हुआ। अज़ादारों मेरा दिल कहता है, बीबी कहती तो होंगी अज़ादारों ये कौन अज़ादार है जो रो रहे हैं? फूफी अम्मा कौन है ये अज़ादार जो रो रहे हैं? मेरी शहजादी ज़ैनब कहेंगी बेटा तेरे बाबा के अज़ादार हैं। मेरी शहजादी हाथों में जोड़कर कहता हूँ कि क्या आपके दिल में बात नहीं होगी अम्मा, काश ये अज़ादार उस वक्त होते जब आपकी हिदायत चुनी। बाबा शहीद हुए, अब्बू शहीद हुए, भाई शहीद हुए, मुझे तमाचे लगे। अज़ादारों तीसरा बहन आखिरी बहन के जिसके बाद शहजादी की शहादत हो गई, बाबा के सर को गोद में लेकर शहजादी कहती है बाबा इंसाफ करके बताइएगा बाबा, पूरी जिंदगी में आपने कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र हो 4 साल और उस पर इतने सितम इतने मजालिम हुए हो कि उसके सर के बाल सफेद हो गए? जज़ाकल्लाह। अज़ादारों रोते रोते सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह को जो रखा तो फिर वो शाम गरीबा की जागी हुई सकीना ऐसे सोई कि फिर माँ जगाती रह गई कि जागो बाली सकीना देते हैं चल सकीना चले करबला।
साथ बाबा के रहना यूं तो हर रोज फरहान मज़हर यूं ही बाप से बेटी मिलती थी ख्वाबों में ही। अरे जिंदगी का यही ख्वाब था आखिरी, अरे यूं लगा साथ बाबा के बोला दिली चल बसी सुन के बस ये सदा चल सकीना चले करबला साथ बाबा। जज़ाकल्लाह, तुम्हारी गिरी को कबूल फरमाए मौला। अज़ादारो एक वाक़या, ये वाक़या सुन लेना कि शहज़ादी तुमसे कितनी मोहब्बत करती हैं। ये वाक़या सुनकर जाना कि इंडिया के फैज़ाबाद के मौलाना हैं नदीम रज़ादी, उन्होंने ये वाक़या पढ़ा कि एक शख्स अरब का रहने वाला था, अरब का रहने वाला था, वो अज़ादार घराना था। चांद मुहर्रम का चढ़ता था, घर में अज़ा खाना सजा लेता था, घर में अज़ा खाना सजाता था। एक वक्त आया, बड़े पैमाने पर मजलिस करता था, एक वक्त आया कि उसके हालात खराब हो गए, उसका कारोबार खत्म हो गया, मजलिस नहीं कर पाया। बीवी बड़ी मोमिना थी, बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मैं नहीं चाहती हुसैन की मजलिस रुके, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। शौहर कहता है कैसी कुर्बानी, शौहर कहता है कैसी कुर्बानी, खड़े हो जाओ। आखिर में शहजादी का हाय सकीना, हाय प्याज का पुरसा देना है, खड़े होकर ये वाक़या सुनना, और जब दिल पर चोट लगे, ये क़यामत तक तुम्हारे रोने के लिए बयान काफी है कि मौला कहते हैं कि ऐसे गिरिया क्या करो मेरी जब की मजलिस में कि जैसे मेरी दादी फातिमा ज़हरा गिरिया करती है। वो शख्स कहता है कि उसकी बीवी ने कहा कि अच्छा तेरी हुर्मत भी कायम रहेगी, अगर तू नाराज ना हो तो मुझे तलाक दे दे, मुझे आजाद कर दे, और जहाँ कमीजें बिकती हैं मुझे वहां जाकर बेच दे, और जो रकम मिले उससे मेरे हुसैन की अज़ादारी को कायम रखना। शौहर तड़प गया। अज़ादारों ये बात उसकी बेटी ने सुन ली, आकर तड़प कर कहती है अम्मा तुम क्यों बाबा से दूर जाती हो, तुम यही रहो। तुम दो रिवायतें मिलती है, एक रिवायत है कि उसने कहा कि मेरा हक कर दो और हक महर ले लो, दूसरी रिवायत ये मिलती है कि अरब का रिवाज था कि औरतों को फरोख्त कर दिया जाता था कनीज बनाकर। वो लड़की कहती है बाबा मुझे कनीज बनाकर मुझे फरोख्त कर दो, मैं हुसैन की इज़्ज़तदारी पे कुर्बान होना चाहती हूँ। अज़ादारों याद रहे ये बच्ची वो थी कि जो बीबी सकीना का ताबूत सजाती थी, बीबी सकीना के नाम का चराग जलाती थी, अज़ादारों घर का ज़खाना सजाती थी। जब ये तय हो गया कि इस लड़की को खरीदने सौदागर आता है, वो सौदागर आकर कहता है उस शख्स से कि हाँ मैं तेरी बेटी को खरीदूंगा, मगर पहले शर्त ये कि तू अपनी बेटी का चेहरा दिखा। बाप तड़प गया, कहता नहीं मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तुझे खरीदना है तो ऐसे ही खरीद। वो कहता है नहीं मैं चेहरा नहीं देख के बगैर नहीं खरीदूंगा। बेटी ने देखा कि ऐसा ना हो सौदा खराब हो जाए। बेटी बाप के कदमों में गिर कर कहती है बाबा राजी हो जाओ ना, बाबा मैं सकीना से बढ़कर तो नहीं, बाबा मैं ज़ैनब से बढ़कर तो नहीं, बाबा कभी कूफे के बाजार शाम के बाजार में भी तभी भी ज़ैनब को बेपर्दा लोगों ने देखा, बाबा मैं उनकी कनीज हूँ, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अज़ादारों वो शख्स जब जाने लगा उसकी बेटी को लेकर बाप कहता है बेटा एक बात का ख्याल रखना, वहां जाकर किसी को परेशान मत करना, ऐसा ना हो तुझसे परेशान होकर वो हमें घर पर छोड़ने आ जाए। बेटा उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं मजलिस में खर्च कर चुका हूँगा। कहती है बाबा मैं मौला हुसैन की अज़ादार हूँ, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब सुनो अज़ादारों, वो सौदागर जब उस लड़की को लेकर अपने घर पहुँचता है, उसकी सौदागर की बीवी आकर उससे पूछती है अरे तू किस लड़की को अपने घर पे ले आया है कि जब से ये यहाँ आई है रात को बीबियों की रोने की आवाज, रात को बीबियों की रोने की आवाजें आती है। वो सौदागर आता है और कहता है उस लड़की से कि बीबी तू कौन है, ये रोने की आवाजें कैसी? वो कहती है तुझे नहीं पता, जब से तू मुझे यहाँ लाया है एक नकाब पोश मौज़मा यहाँ आती है, मुझे अपनी गोद में बिठा कर प्यार करती है। अज़ादारों वो सौदागर कहता है तुम्हारे रोने के लिए क़यामत तक के लिए ये जुमला रोने के लिए काफी है। सकीना की मोहब्बत तुम्हें इस बात का अंदाजा लगाओगे कि सकीना तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। अज़ादारों वो सकीना की अज़ादार थी ना, उसकी आंखों में आंसू थे, बाबा से कहती थी बाबा मैं चली जाऊंगी, घर का ज़खाना कौन सजाएगा? सुनो वो सौदागर कहता है मैं रात को सोया, मैंने ख्वाब में देखा
کہ رسول خدا آئے ہوئے ہیں، اپنے بالوں کو بکھرایا ہوا ہے، امامہ اتارا ہوا ہے رسول نے، اور کہتے ہیں شخص اس لڑکی کی جتنی اجرت تو چاہے مجھ سے لے لے، مگر جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس کے ماں باپ کے گھر پر چھوڑ کر آ جا۔ وہ سوداگر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ایسی کیا قیامت آ گئی؟ رسول فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا کیا قیامت گزر گئی؟ جب سے تو اس لڑکی کو یہاں لایا ہے، ادھر حسین کی بیٹی سکینہ اس کے لیے کبھی حسین کا دامن کبھی عباس کا دامن، ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ بارے رہا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، جتنے عزادار ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔